Now let's turn our attention to the other crucial story we're tracking. The Uttar Pradesh government has finally taken action following the death of a 27-year-old software engineer whose car plunged into a water-filled pit at a construction site in Noida Sector 150. Noida Authority CEO M. Lokesh has now been removed from his post and an SIT has been set up for the probe. This SIT is expected to submit their report within 5 days. This as the autopsy report confirms that Yuvraj Mehta suffocated underwater. He suffered a cardiac arrest leading to his death. Noida BJP MP, by the way, has spoken out over this incident, slamming his own government. Reacting to this incident, Mahesh Sharma, Noida BJP MP, has added that the lack of arrangements during rescue operations is concerning. He said that the techie's death is very saddening and asserted that the Uttar Pradesh government stands by the victim's family. The UP police, meanwhile, have registered a case against two builders, one of them being MJ Wishtown Planner Limited, the other being Lotus Green Construction Private Limited, on a complaint by the victim's family. Even as police deny negligence in this rescue operation, Mahesh Sharma is hitting out at his own government. Listen in. दुखद चिंता चल ऐसी घटनाएं होना नोएडा जैसी जगह पर नहीं होना चाहिए था। होने के बाद भी जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई वो और अपने आप में चिंता जोड़ती है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम प्रतिबद्ध हैं कि उस परिवार के साथ, उस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े और जो भी मदद परिवार की जा सकती है करें और आगे ऐसी घटना ना हो। जिनकी जिम्मेदारी फिक्स हो उनको एक ऐसी नजीर पेश की जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। Breaking news coming in at the moment. The Noida death case has taken a deeply disturbing turn. Now an eyewitness has spoken to NDTV and claimed police pressure. An eyewitness has now alleged police pressure, claiming he was asked to change his statement, that he is being threatened and that he is scared at the moment. The eyewitness has spoken to NDTV, making this claim on Yuvraj's death. This as Muninder Singh had rescued Yuvraj. Taking a step back, a 27-year-old software engineer, Yuvraj Mehta, lost his life after his car plunged into a pit at a construction site in Noida Sector 150. Akhil tracking the latest for us. He joins us with the latest revelations at the moment. Akhil, take us through what we've learned from this latest eyewitness account. It's a big claim that the eyewitness is alleging police pressure and categorically saying that they are being threatened. Well, that's right, Parmeshwar. If you see what we are witnessing right now, that the only person who basically dared to go inside this very area, this is the very pit where what we have seen that the 27-year-old techie, basically his car plunged into this water pit area, and then what we have seen that he was not able to survive in this very tragedy, and after half hour of that process, rescue team was not able to recover him alive. So right now, what we have seen that the person who basically went has come forward and he has alleged that if you see the police has basically called him to record his statement, and apart from that he has been told to change his statement as well, and in this regard he was told that he will be allowed to meet some of the senior officials, including the ACP rank officials. And when I asked him regarding that who those individuals were, can you identify those policemen individuals, and they are threatening him to change his statement at this point in time. Right. Meanwhile, in terms of the victim's family, what's the latest coming in, Akhil? See, the family has basically gone to their home estate for doing the last rites at this point in time. And apart from that, on the investigation front, what we have been seeing that an SIT has already been formed. And apart from that, the second most important thing, what we have seen that the Noida Authority CEO has been basically benched. He has been put on waiting right now. So right now, if you see on the investigation part, what we are seeing that only one individual, which is the junior engineer in this case, has been suspended so far by the district administration. So for that, we'll have to wait and to get more information. All right, Akhil, we'll continue to track all the latest details with you.
But a sitting BJP MP has publicly questioned his own government. Mahesh Sharma has called this death saddening and flagged serious lapses in rescue arrangements and said the government stands with the family. This, as an eyewitness has now alleged police pressure, claiming he was asked to change his statement, that he is being threatened and that he is scared. Listen in. सर मतलब प्रशासन की तरफ से भी जो लोकल पर्सन हैं वो भी बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दे, यहाँ से चला जा, 10-20 दिन मत दिख, इस केस में मत खड़ा हो खुल के। अब एक चीज़ बताएं सर, मैंने 3 दिन सच्चाई दिखाई है, पूरे ऑल इंडिया को लगा ले, मैंने एक एक छोटी से लेकर बड़े तक मैंने बिल्डर तक की भी पोल खोली है, अथॉरिटी की पोल खोली है कि जब बिल्डर अथॉरिटी ने ये बेसमेंट सीज किया था, उस बिल्डर के खिलाफ केस हुआ था, अथॉरिटी ने सीज किया था, अथॉरिटी ने इसको लेवल क्यों नहीं किया, ये मौत का गड्ढा क्यों खोद के रखा, फिर अथॉरिटी की भी तो गलती है, मान के चलो। और बिल्डर ने ऐसा बताता कि ओ जी समझाइए मुझे, आपको थाने बुलाया गया, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ? जी मेरे पास एक वीडियो है जो थाने की है, प्लीज आज वो दोनों चेक कर सकते हैं आप। उसकी वजह से जो मेरी छवि करी, जो मैंने काम किया है। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आपको थाने बुलाया गया? जी आप थाने गए? 1 बजे गया था जी। कब? रात में? उसी रात? नहीं, मॉर्निंग में 1 बजे गए थे। क्या आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था? हाँ जी। क्या क्या पूछा गया? मतलब रिकॉर्ड में ये बोल रहे थे मुझसे कि आप आइए, एसीपी सर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, जो भी है आप। मैंने बोला ये बात किसने बोला? वहीं पे जो सर पुलिस वाले अंकल, एसआई था, एएसआई था? वो नहीं, वो थे सिपाही। क्या बोले थे कि आज तुम्हारी मीटिंग करवाते हैं एसीपी सर से। क्या मीटिंग करवाएंगे? क्या बोले कि जो तुम्हारे वहाँ के बयान है यहीं देने हैं, तुम आके जो सेम बयान है बिल्कुल। कौन सा? क्या बयान पलटने के लिए बोल रहे थे? क्या बोल घटना, जो भी कोई घटना है वो बताइए मौके पे जो भी थी। मगर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचे उसके बाद? जी, मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद पहुंचा भी था। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम, मैं नहीं, मुझे डर लग रहा था कि बयान में क्या बयान दिया? बयान में ये बोला था उन्होंने कि भाई तुमने ये बोला है कि पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहे हो तुम, जो भी चीज है। आपने तो सच बताया ना? हाँ, मैंने सच बताया सर, लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट बदलने के लिए हाँ बोल रहे थे कि तुम पुलिस को साथ में लेके चलो, ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस भी तो मौके पे मौजूद थी। मैं बोला सर, ये आपसे बोला गया कि पुलिस मौके पे मौजूद थी? क्या मौजूद थी? मौजूद थी, लेकिन लड़के को तो नहीं बचा पाए। पानी में क्यों नहीं दाके, मैं ही क्यों दाका लास्ट में आके जी। तो आपसे बोल रहे थे कि अपना स्टेटमेंट सर ये मुझसे मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है इसी चीज को लेके कि इस केस में। प्रेशर क्या? प्रेशर यही है कि इस केस से अलग हट जाओ बिल्कुल, या पुलिस को अपने साथ वालों ने जो मेरी पहली वाली वीडियो में, जो मैंने पहली वाली वीडियो उसमें सच्चाई है, जो दूसरी वीडियो है उसमें थोड़ा मुझे घुमा फिरा के मेरा जो अपने साथ में लगा के वीडियो में ये बुलवाया था कि मोनिंदर आप एक काम करो, पुलिस को साथ में लेके चलो, पुलिस से आप बैर मत बांधो, ये चीज गलत है वगैरह, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी आपके लिए, ऐसे ऐसे बोल के मेरे साथ वीडियो बनाइए। Akhil Jamil, who spoke to the eyewitness as he made this huge claim, joins us live for further clarity at this point. Akhil, do we have a reaction from police authorities in Noida yet, as the eyewitness claims that he's being pressured by the police to change his statement, that he's being threatened and he's scared at the moment? Also take us to the latest action as far as the police probe is concerned. Well, absolutely. We are waiting for the official confirmation from the police side, from the DCP side as well. But right now, I'm joined by Moninder himself. Moninder, ये बताइए कि आपको धमकी क्यों दी जा रही थी पुलिस की तरफ से? मतलब मुझे बुलाया गया था, बोल रहे थे कि सीनियर हमारे अधिकारी हैं, उनसे आपको मीटिंग करनी है, जो भी चीज़ सच्चाई है वो बताना है। मगर ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। आप कितनी देर में आ जाएंगे? तो आप डरे हुए क्यों हैं? स्टेटमेंट क्यों बदला? सर मैं आप एक चीज़ बताएं, मैं खुल के खड़ा हुआ हूँ, यहाँ की जितनी भी पोल हैं सारी मैंने खोली हैं, बिल्डर से लेकर पुलिस की, फायर ब्रिगेड की, ठीक है जी, जितना भी कोई भी चीज है। वो तो सही है, ये सिर्फ इतना छोटी सी बात क्लैरिफाई कीजिए। मेरी बात तो सुना, मैं जब सबके सामने खुल के पूरे देश को मैंने बता दी है सच्चाई, तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो मैं डरूंगा नहीं सर, मैं तो मिडिल क्लास बंदा हूँ। बताओ, पुलिस ने आपको ऐसा कहा कि पुलिस के साथ साथ चलो, हमारे साथ चलो? जी बोला था उन्होंने, बोला था कि यार पुलिस भी मौके पे मौजूद थी तो तुमने ऐसे क्यों बोला, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। मगर सर ये चीज तो सच्चाई है कि पुलिस मौके पे थी, लेकिन उस लड़के को बचाने अंदर नहीं गए, मैंने ऐसे बोला था। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे कितनी देर बाद पहुंची थी? सर फायर ब्रिगेड की टीम लगभग लड़का के डूबने से आधे से पौन घंटे पहले आ चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम में कितने लोग थे तकरीबन? 10 से 15। और कितने लोग नीचे उतरे थे? ठीक जो पानी का इलाका है यहाँ पे, पानी में उतरे थे, दो लोग थे, वो सीढ़ी पे बैठे हुए थे। नीचे गए नहीं? ये पानी का इलाका, पानी में नहीं गए, सीढ़ी घेर कर पानी में सीढ़ी लगाकर सीढ़ी पे बैठे हुए थे। उनके पास इक्विपमेंट थे जी, सीढ़ियाँ थी, उनके इक्विपमेंट यूज करके ही तो मैं अंदर गया था। सेफ्टी जैकेट पहन के, रस्सा बांध के कमर से, मैं तब उनके ही तो पहन गया था अंदर। पूरी जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, उसके अलावा नोएडा अथॉरिटी की टीम थी, नोएडा पुलिस की टीम थी, आप में उनमें से एक शख्स जो है 50-60 लोगों में से कोई शख्स
नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नहीं, उनके अंदर डर इतना था, ऐसे लग रहा था अगर पानी टच कर लिया तो हमारी सीधी मौत होगी। एसडीआरएफ की भी टीम यहाँ मौजूद थी, वो प्रोफेशनल होते हैं। एसडीआरएफ की सर 4:30 बजे आई थी। एसडीआरएफ ने उस लड़के को रेस्क्यू किया था, गाजियाबाद से आई थी, उन्हें टाइम लग गया था। एसडीआरएफ घटना 11:45 पे होती है, 4:30 बजे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचती है, 4.5 घंटे बाद। वही बोल रहे थे, कुछ ऐसा बताते हैं कि बोल रहे थे फॉग ज्यादा है, 40-45 किलोमीटर से आए हैं, कुछ ऐसी मतलब नाइट ड्यूटी में कोई नहीं था, सब सो रहे थे। पता नहीं सर क्या सिस्टम था। आपने देखा, आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं, आप ऑन कैमरा ये बात कबूल कर रहे हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो काफी देर से आई थी। जी 4:30 बजे। 4:30 बजे एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। एनडीआरएफ नहीं है, एसडीआरएफ आई थी, सिर्फ एसडीआरएफ आई थी। मेरे सामने एसडीआरएफ आई थी, 5:30 बजे तक मैं आया था। और रेस्क्यू करने के लिए आप ये बात भी ऑन कैमरा बोल रहे हैं एनडीटीवी पे कि रेस्क्यू करने के लिए नीचे ये जो पानी का इलाका है यहाँ पर कोई नहीं उतरा। कोई नहीं गया था जी, मैं ही गया था। मुझसे भी ये बोला था कि अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए। लड़के की आवाज अभी 5 मिनट पहले आनी बंद हुई है। वजह क्या थी नहीं जाने की, क्या बोला? अंदर डर था हर चीज से कि हम मर ना जाएं, हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, हमें सरिया ना लग जाए, ठंडा पानी है, सर्दी ना लग जाए। लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा, ठंड के डर से नहीं जा रहे थे। हाँ जी, ठंडा पानी था, बोले थे बेसमेंट है, सरिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने बोला मैं जा सकता हूँ, सब चीज को मैं अपना आप हैंडल कर लूँगा, मुझे इजाजत दीजिए। उन्हें बोला आप पे तैरना था, मैं हाँ जी तैरना आता है, ठीक है तो आप जाइए। मैं सीधा चला गया, भाग गया। So here you see, Prameshwar, this was one of the eyewitnesses who was present at that point in time, and he has seen it all, and he was the one who tried to rescue Yuvraj, but unfortunately, Yuvraj is not among us today after this very unfortunate tragedy in which what we have seen that 27-year-old techie has lost his life. As always, Akhil, thank you so much for highlighting the eyewitness account from Moninder. We will, of course, revert to you for regular updates as and when Noida authorities also respond to this allegation.